Hello students, I hope you all are fine and enjoying at your home. So today we are going to start chapter number 1. Before we start the chapter number 1, please आप जाइए और अपने टेक्स्ट बुक लेके आ जाइए because मैं जब भी आपको कुछ कहूँगी you have to underline it, you have to highlight it. Okay, so let's start. Our chapter number 1 is evolution of computers. Yes, chapter number 1 is evolution of computer. You can see on my screen, otherwise you can see in your textbook also. Okay, so our first chapter is evolution of computer. What is evolution? Evolution means change. Computers, from the starting of the computer till the end, what are the difference of all the computers, how they were look before, how they looks now, and how they will look in after few years. Okay, so that we have to learn in this chapter. So shall we start chapter? Yes, let's start. Early counting tools. Since ancient time, people have invented tools for calculation. Early men tied knots in a rope and carved marks on a clay in order to keep the records. They also used to count with the help of fingers, toes, pebbles, stones, sticks, bones, etc. कंप्यूटर नहीं था उस जमाने में, कुछ भी कैलकुलेशन डिवाइस भी नहीं था पहले। तो पहले के लोग क्या करते थे? पहले वो लोग अपने फिंगर्स से काउंट करते थे, स्टिक से काउंट कर सकते थे, स्टोन्स को रख के काउंट करते थे, या फिर दीवार में कुछ भी लाइंस बना के काउंट करते थे किसी भी चीज से। ओके, तो पहले वो लोग ऐसे काउंटिंग करते थे जब कोई भी काउंटिंग डिवाइस नहीं था। उसके बाद आया एबेकस। एबेकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। जब सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ? एबेकस। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंप्यूटिंग वाज द इन्वेंशन ऑफ एबेकस अराउंड 3000 years ago in China. It is a wooden frame with beads on parallel wires which can do simple calculations like additions and subtraction. This device is used to calculate numbers at a fast speed. Okay, जब सब पहले अपने हाथ से काउंट करते थे, उसके बाद सबसे पहले किस चीज की खोज हुई? एबेकस की। यस, आप लोगों ने एबेकस देखा है। एबेकस क्या होता है? एक वुडन फ्रेम होता है जिसके अंदर लाइंस होती है, रोड्स होती है और उसके अंदर बीड्स होते हैं। ऐसे एबेकस होता है और बीड्स को ऊपर नीचे और आगे पीछे करके काउंटिंग होता है। ओके, और एबेकस का कब इन्वेंशन हुआ था? 3000 years ago. And where it was invented? In China. So you have to underline this. The first step towards computing was the invention of abacus around 3000 years ago in China. Okay, इतना आपको underline कर लेना है. Now second one is Pascaline adding machine. In 1642, a mathematician Blaise Pascal invented the calculating machine called the Pascaline adding machine. एक पास्कलाइन करके एक मैथमेटिशियन था, पास्कल, उसका नाम पास्कल था। तो उसने एक मशीन बनाया, कैलकुलेटिंग मशीन बनाया, उसका नाम फिर उसने क्या रखा? पास्कलाइन। सी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये वाला जो मशीन है इट इज अ पास्कलाइन मशीन, और ये जो है इट इज द ही इज द मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल। In which year? In 1642. You have to underline this. In 1642, a mathematician Blaise Pascal invented the calculating machine called the Pascaline adding machine. यहाँ तक आपको अंडरलाइन कर लेना है। The numbers were fed into the machine by dialing them on the wheels. This device is believed to be first mechanical calculator of the world. This machine was capable of performing only addition and subtraction. It is the first mechanical calculator. We can say that it is the first mechanical calculator. आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछे आपको कि which is the first mechanical calculator, then you have to remember this answer, Pascaline adding machine. Pascaline नाम था उस मशीन का। ओके, तो आपको ये भी अंडरलाइन कर लेना है। The first mechanical calculator is Pascaline. ओके, और इस मशीन में क्या होता था? सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। Now Leibniz tape reckoner. Leibniz tape reckoner. In 1672, a mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz invented the digital mechanical calculator called step reckoner. ये जो मैथमेटिशियन थे गॉडफ्रेड, उन्होंने भी एक मशीन बनाया, डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर।
सी पहले जो था वो सिर्फ फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, और ये जो है ये स्टेप रेकॉनर जो है वो डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर है. इट वाज फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कुड परफॉर्म ऑल 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सी पास्कल जो मशीन था उसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही हो सकते थे, बट लेबनिज का जो ये स्टेप रेकॉनर था उसके अंदर मैथ्स के चारों वाले फॉर्मूलाज हो सकते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि पास्कल में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था, और लेबनिज का स्टेप रेकॉनर में क्या होता था, उसमें चारों चीजें हो सकती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. यह आप अंडरलाइन कर लेना, मैथमेटिशियन का लेबनिज स्टेप रेकॉनर का पूरा नाम, और इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कुड परफॉर्म ऑल 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ओके, नाउ चार्ल्स बेबेज, यू हर्ड, आई थिंक आपने इसका नाम सुना होगा, यू हैव हर्ड अबाउट दिस चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन. इसे कंप्यूटर का फादर से जाना जाता है इन्होंने. ओके, तो लेट्स लर्न अबाउट हिम. In 1822, a mathematician Charles Babbage developed a steam-driven calculating machine that was the size of a room, which he called the difference engine. But even after working on this project for 10 years, this machine never became a reality. Charles Babbage थे वो कहाँ के थे, वो उन्होंने एक मशीन बनाया था, उसका नाम उन्होंने दिया डिफरेंस इंजन, और वो मशीन इतना बड़ा था, रूम की साइज का बड़ा मशीन था. ओके, और उन्होंने कब बनाया था, 1822 में. तो आपको ये भी याद रखना है, बट वो मशीन सक्सेसफुली नहीं बन पाया था, और 10 इयर्स तक उन्होंने उस मशीन पे काम किया, बट वो मशीन कभी भी कंप्लीट हो पाया नहीं. In 1833, he invented a machine called analytical engine, the first ever working model of a mechanical computer, a fully programmed controlled machine. This is why Charles Babbage is known as the father of computers. 10 years के ऊपर काम करने के बावजूद भी वो मशीन नहीं बन पा रहा था. In 1833 में उन्होंने एक और मशीन बनाया, और उसका नाम उन्होंने रखा एनालिटिकल इंजन. अंडरलाइन दिस. 1833 he invented a machine called analytical engine, the first ever working model of a mechanical computer. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि which is the first mechanical computer, तो आपका आंसर होगा analytical engine, and it's invented by Charles Babbage. That's why who is the father of computer? Charles Babbage. इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर बनाया था. ओके, then Lady Ada Lovelace program. The instruction given to Babbage's analytical engine were in the form of zeros and ones, and the first person to introduce this concept was Lady Ada Lovelace. एक जो कंप्यूटर कभी भी बनाते हैं, तो कंप्यूटर कौन बना सकता है, प्रोग्रामर बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम ऐड करने पड़ते हैं, तभी कंप्यूटर काम करता है ना. तो लेडी एडा लवलेस जो है वो फर्स्ट प्रोग्रामर है, ऐसा कहा जाता है कि वो फर्स्ट प्रोग्रामर है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने जो मॉडल बनाया था उसके ऊपर प्रोग्रामिंग किसने किया था, लेडी एडा लवलेस ने किया था. ओके, और कंप्यूटर तो 0 and 1 पे ही काम करता है, ये तो आपको पता ही होगा. सिंस she was the first to introduce the concept of programming, she is known as the first computer programmer. Underline this, she is known as the first computer programmer, and उसका नाम क्या था, लेडी एडा लवलेस. ओके, now Herman Hollerith's tabulating machine. Herman Hollerith, an army engineer, built a machine called tabulating machine in 1890. The machine read the stored data from punched card. इन्होंने एक मशीन बनाया हरमन होलीरिथ ने. वो मशीन कैसे काम करता था, वो पंच कार्ड की मदद से उसको पंच करना पड़ता था. पंच मीन्स वो ऐसे नोट कर करके बनाते हैं ना, ठोक ठोक के, ऐसा वाला मशीन. उन्होंने ऐसा वाला मशीन बनाया था कि वो वैसे कैरेक्टर्स टाइप का था, जैसे कि टाइपराइटर, आपने टाइपराइटर देखा होगा, उसमें हमें कीज ऐसे करनी पड़ती थी. यस, क्या नाम था उनका, हरमन होलीरिथ, और उनके मशीन का नाम क्या था, उन्होंने जो मशीन बनाया था उसका नाम क्या था, होलीरिथ टेबुलेटिंग मशीन. ओके, और कौन से ईयर में बनाया, 1890 में. After the success of the machine, Hollerith formed a computing tabulating recording company to sell his machine. Later in 1924, his company became a part of an International Business Machine Corporation, today popularly known as IBM. Yes, IBM का नाम आपने सुना होगा. What is the IBM? Full form क्या है IBM का, International Business Machine Corporation.
IBM का नाम आपने सुना होगा, उसके कीबोर्ड, माउस और वो सब उसके आते हैं, उसके लैपटॉप और वो भी आता है, वो प्रोसेसर बनाते हैं IBM वाले, है ना। तो IBM का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो IBM जो कंपनी था वो किसने बनाया था? हरमन होलेरिथ ने। ओके, सी ये मशीन ऐसा दिखता था, टेबुलेटिंग मशीन। ओके, अब आप देखेंगे कि कंप्यूटर का आपने देखा कि कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे हुआ। अभी कंप्यूटर को अलग अलग 5 जनरेशन में डिवाइड कर दिया है। 5 जनरेशन में, कितने जनरेशन में? 5 जनरेशन में। तो अब हम लर्न करेंगे कि कौन सी जनरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।